Good morning everyone, this is Ruby Rathor. Today's lecture is for class 12th. So student, in this lecture we will continue our same chapter electric charges and fields. So student, now in this lecture we will study about the force between multiple charges. Student, you have already studied that Coulomb's law and the Coulomb's law in vector notation. So student, in the Coulomb's law you will कंसीडर ओनली टू चार्ज. हम कूलाम्स लॉ में कितने चार्जेस को कंसीडर करेंगे? दो चार्जेस को. आपने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को कूलाम्स लॉ में वेरीफाई किया था, उसको फाइंड किया था. नाउ अगर हम यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस का एक सिस्टम लेते हैं, इट मीन्स हम n चार्जेस लेते हैं वैक्यूम में, देन what will be the total force on any one charge due to the other charges? So student, force between multiple charges is also known as the principle of superposition. हम multiple charges के द्वारा लगने वाले force के concept को principle of superposition के नाम से भी जानते हैं. So let's start. Let's consider a system of n charges. Charges कैसे होने चाहिए आपके? Stationary. Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn in vacuum. यहाँ पर हमने n charges को vacuum में consider किया है. So student, look at this figure. Here Q1, Q2, Q3, Q4 and Qn are the charges present in the vacuum. So student, you can see that if any two charges comes to contact each other or comes to in the influence to each other, so they applied the equal and opposite force on each other. अगर यहाँ पर चार्ज Q1, Q2, Q4, Qn और Q3 पर फोर्स लगाएगा, देन Q2, Q4, Qn और Q3 भी Q1 पर अपना फोर्स अप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट, व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द Q2, Q3 एंड Qn? सो स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं उनके द्वारा Q1 पे लगने वाला टोटल फोर्स कैसा होगा या कितना होगा? सो to our better understanding, now consider the another system of the limited number of charges. So student, now consider a system of three charges Q1, Q2 and Q3 in vacuum. हमने vacuum में तीन charges को consider किया है. So look at this figure student. Here Q1, Q2 and Q3 are placed some definite distance from a origin. So the position of Q1 from the origin O is R1 and the position of Q2 from origin is R2 and the position of Q3 from O is R3. So student, here Q2 applies a force on Q1 and Q3 also applies a force on Q1. So if the Q2 and Q3 applies the force on Q1, then Q1 also applies the force on Q2 and Q3. अगर Q2 और Q3 Q1 पे अपना अपना फोर्स अप्लाई करेंगे, then Q1 भी दोनों पर अपना अपना फोर्स अप्लाई करेगा. So student, what is the total force on Q1? So here you can see that the force on Q1 due to Q2 represents by F12. F12 represents that force on Q1 due to Q2 and F13 implies that force on Q1 due to Q3. Now the total force is act toward the F1. So F1 is the total force on Q1 which equals to the F12 plus F13. Okay student. So what says the principle of superposition student? Look at this. By the principle of superposition, the force on any charge due to number of other charges. किसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण या कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज कितना होता है? द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस. इट मीन्स अगर हम n चार्जेस को अपने सिस्टम में कंसीडर करते हैं और किसी एक चार्ज पर फोर्स अप्लाई करें, देन द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज. इट मीन्स Q1 पे लगने वाले
प्रत्येक फोर्स इट मीन्स इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा लगाए हुए फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम करते हैं देन we will get our total force on the charge q1. Okay student, this is our principle of superposition. So according to the principle of superposition, the total force on q1 is F1. So F1 equals to the F12 plus F13. Okay student, so come to our topic. So the force on charge q1 due to two other charges q2 and q3 can be obtained by performing a vector addition of the forces due to each one of these charges. अभी आपको पहले ही समझाया है कि q1 पे लगने वाला टोटल फोर्स किसके द्वारा, q2 और q3 के द्वारा अगर हम निकालते हैं देन q2 के द्वारा अप्लाई किया हुआ फोर्स और q3 के द्वारा अप्लाई किया हुआ फोर्स दोनों का जब हम सम करेंगे देन वी विल गेट अवर टोटल फोर्स ऑन q1. ओके स्टूडेंट, सो thus the force on q1 due to q2 is F12. then F12 को हमने कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सीखा था. सो F12 इक्वल्स टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर 12 है देन चार्जेस q1 डॉट q2 लिया गया है. ओके, सो स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर डॉट r12 कैप. Okay, in the same way the force on q1 due to q3 is F13 vector. Then F13 vector equals to the 1/4 pi epsilon naught q1 dot q3 upon r13 square dot r13 cap. According to superposition principle, the total force on q1 equals to the sum of both forces on q1. Okay, F1 vector इक्वल्स टू द F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर. दोनों फोर्सेस का हमें यहाँ पर क्या करना है, सम करना है टू गेट अवर टोटल फोर्स. सो स्टूडेंट F12 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर डॉट r12 कैप और F13 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q1 q3 अपॉन r13 स्क्वायर डॉट r13 कैप. ओके, सो इफ वी सम बोथ सो वी गेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है देन वी टेक इट कॉमन. सो स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया है हमने. नाउ q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर डॉट r12 कैप प्लस q1 q3 अपॉन r13 स्क्वायर डॉट r13 कैप. ये आपका टोटल फोर्स आ गया है थ्री चार्जेस के सिस्टम के लिए. ओके, नाउ इसी तरह अगर हम n चार्जेस के सिस्टम को कंसीडर करते हैं सो सिमिलरली द टोटल फोर्स F1 ऑन चार्ज q1, अगर हम अपने सिस्टम में n चार्जेस को लेते हैं देन ड्यू टू ऑल n चार्जेस द टोटल फोर्स इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस F12 F13 डॉट 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 F1n. सो F1 वेक्टर इक्वल्स टू द F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 F1n वेक्टर. ओके स्टूडेंट, so student now look at this. यहाँ पर आप जैसे ही F1 वेक्टर को निकालना चाहेंगे then you will put all the values of F12 F13 and dot 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 F1n. यहाँ पर आप हर एक फोर्स के हर एक इंडिविजुअल फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए. इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको पुट किया है जिस तरह से F12 को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर डॉट r12 कैप ले रहे हैं. उसी तरह हम F1n को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 qn अपॉन r1n स्क्वायर डॉट r1n कैप ले सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा. बाकी बची हुई चीज़ों को आप ब्रैकेट में ले सकते हैं. जब भी हम किसी भी सेम थिंग का सम निकालते हैं देन वी रिप्रेजेंट्स द टोटल सम बाय द सिग्मा. सो स्टूडेंट हेयर आप देख सकते हैं q1 सभी में कॉमन है, हम q1 को भी कॉमन ले सकते हैं. नाउ सिग्मा I इक्वल्स टू, इट मीन्स q1 पे हमने चार्ज q2 से फोर्स निकालना शुरू किया है. सो I इक्वल्स टू 2 और कितने चार्जेस हैं हमारे पास, टोटल n है. सो n सिग्मा I इक्वल्स टू 2 हेयर qi अपॉन R1i dot R1i cap. This is the total force on charge q1 due to the system of n charges. Okay.